Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. So in the last video, which was the first lesson or the first lecture of the topic transportation or the human circulatory system, we discussed in detail what does human circulatory system means, what is its functions, and we discussed the different components involved in making up our human circulatory system. So just to revise a little bit, these are the different components of the circulatory system, starting with the blood. Then comes our blood vessels, which carry our blood. Then comes the heart, which is considered to be the main pumping organ of our body. And lastly, we have lymph and lymphatic system. Lymph and lymphatic system is quite different from the main circulatory system, but it is considered as a component of the circulatory system, particularly because it is responsible for transporting various substances like excretory wastes and carbon dioxide, etc., throughout our body. Lymph is also related to blood but somewhat different. So we'll be discussing what lymph and lymphatic system means in the further videos. So in the last video itself, we have discussed everything about blood, but let's just revise once. Blood is a fluid connective tissue which is red in color due to the presence of hemoglobin pigment. Next we have functions of blood. Blood के बहुत सारे functions होते हैं. It plays a major role in transportation, defense mechanism and also regulatory functions. Talking about the composition of the blood, blood has a liquid component and a solid component. Liquid component forms up 55% of the total blood volume of humans, and blood cells or blood corpuscles, which is the solid part, forms the 45%. Blood corpuscles contain different cells like red blood cells, white blood cells, and platelets. These are the shape of different blood cells, and this was in detail what are the different facts related to these blood cells as well as plasma. So till this we have discussed in the last video. If you still have any doubts, you can go and see the last video. I'll make sure to link it somewhere either in the I button or in the description box. So let's get started with today's video, which is the second component of our circulatory system, which is blood vessels. अब blood vessels क्या होते हैं? Blood vessels are simply tubes or network of tubes which is present in our body that carries blood. अब blood जो है हमारी बॉडी में कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता, उसको पर्टिकुलर पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए. तो द पाथ इज प्रोवाइडेड बाय द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स ऐसी ट्यूब्स हैं या फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. देयर फंक्शन इज मेजरली टू कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. अब ये जो ब्लड वेसल्स है दो टाइप की हो सकती है. अब ये ब्लड वेसल्स या तो हमारे हार्ट से बाकी सारे पार्ट्स तक ब्लड लेकर जाएंगी या फिर बाकी सारे पार्ट से हार्ट तक वापस से ब्लड लेकर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंसिडर करें, दिस इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट. अब ये हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाएगा और यहाँ पे ये हार्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं बॉडी को. अब इसको और इजीली अगर हम समझने की कोशिश करें, दिस इज बॉडी, दिस इज हार्ट. अब ब्लड को हमें बॉडी से हार्ट तक भी लेकर जाना है, ब्लड को हमें हार्ट से वापस बॉडी की तरफ भी लेकर जाना है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट blood vessel, this is the function of another blood vessel. So in our body there are different types of blood vessels, starting with arteries, then comes veins and capillaries. अब arteries, veins और capillaries को हम उनके function पर भी define करते हैं, उनकी direction of blood flow पर भी define करते हैं और उनकी thickness पर भी define करते हैं. अगर हम capillaries की सबसे पहले बात करें तो capillaries are the smallest and the tiniest blood vessels in our body. उनकी जो walls है, उनके वॉल्स की थिकनेस इज जस्ट 1 सेल थिक. एक सेल से ज्यादा उनकी वॉल की थिकनेस नहीं होती. whereas if we look at arteries and veins, they are comparatively thicker. अब आर्टरीज और वेन्स को भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो वेन्स की जो वॉल्स हैं इट इज थिनर एज कंपेयर टू आर्टरीज. आर्टरीज की वॉल्स और ज्यादा थिन होती है. दिस इज द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ वेन्स. और कैपिलरीज तो उससे भी बहुत ज्यादा थिन है. Next comes, let's discuss in detail about capillaries. So capillaries क्या है? Capillaries are very narrow blood vessels which is located within the tissues. Mostly जो capillaries हमें मिलेंगी tissues के अंदर मिलती हैं.
they have extremely thin walls, they have fine vessels which are one celled thick. अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, दिस इज जस्ट वन सिंगल सेल और सिर्फ इतनी ही थिकनेस होती है इनकी, जितनी एक सेल की थिकनेस होगी उतना ही इन कैपिलरीज की थिकनेस होती है. दे फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. अब कैपिलरीज फॉर्म कैसे होती है यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज अ मेन आर्टरी, दिस इज अ मेन वेन. आर्टरी जब आगे जाके डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, इसको हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स. वेन्स जब डिवाइड होती हैं स्मॉलर ब्रांचेस में, इनको हम बोलते हैं वेन्यूल्स. तो आर्टरीज और वेन्स जब ब्रेकअप होती है इनटू आर्टेरियल्स एंड वेन्यूल्स, इनके बीच का जो कनेक्शन फॉर्म हुआ है, दिस मच कनेक्शन formed by the arteries and veins, this is termed as capillaries. तो कैपिलरीज कैसे फॉर्म होते हैं? कैपिलरीज आर फॉर्म्ड बाय कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. कैपिलरीज का फंक्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है दैट कैपिलरीज अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड्स एंड सेल्स. अब हमने जब एल्वियोलर एक्सचेंज पढ़ा था, एल्वियोलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलर एक्सचेंज में भी हमने देखा था कि जो हमारी एल्वियोलाई की वॉल है, एल्वियोलाई की वॉल के बाहर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था. गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलाई में इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एक तो एल्वियोलाई की थिकनेस बहुत ज्यादा कम होती है, दूसरी चीज इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज जिनकी थिकनेस भी कम होती है, और दूसरा ये एक्सचेंज को अलाउ करते हैं. वहीं अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय है, विलाय आर ऑल्सो रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है वो भी इजी हो जाता है. Since they are very thin, movement of substances can take place very easily. अब क्योंकि बहुत ज्यादा थिन होती है इनकी वॉल्स, तो सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज है, वो इजीली हो जाता है. यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी दैट कैपिलरीज आर प्रेजेंट विद इन द टिश्यू. यही चीज आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि कई बार हमारे जो थिन पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, सच एज आवर चीक्स और हैंड्स, यहाँ पर हमको ऐसे रेड कलर की लाइंस दिखती है, रेडिश, पर्पलिश, ग्रीनिश कलर की लाइंस, दे आर नथिंग बट आर ब्लड कैपिलरीज. नेक्स्ट अप ये डायग्राम है कि आर्टरीज और वेन्स के कनेक्शन से कैपिलरीज कैसे फॉर्म होती है. तो अब ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज ब्रेकअप इनटू आर्टेरियोल्स, arterioles form capillaries, capillaries further break up into venules to combine to form venules, and these venules combine to form veins. So arteries branch to form arterioles and break up into capillaries. Capillaries gradually reunite to form venules. Venules further combine to form veins. अब ये ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है that this is the main artery, this is the main vein, these are arterioles, these are venules, और बीच में यहाँ capillaries फॉर्म हो गई. या फिर ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है, ये इनकी आर्टेरियोल्स हैं, ये वेन्यूल्स, और बीच में जितना भी स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कैपिलरी. एंड सेम विद दिस वन, वी हैव द मेन आर्टरी, वी हैव ब्रांचिंग called arterioles, we have vein, we have branching called venules, and they form capillaries. अब ये कैपिलरीज के जितने भी पीछे हैं सारे ये टिश्यू के सेल्स होंगे, जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होंगे. So this was all about capillaries. Next we have arteries और veins. अब इसी एक डायग्राम से हम arteries और veins को बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज की जो थिकनेस है जस्ट वन सेल थिक, कैसे बन रही है? आर्टरीज और वेन्स के कॉम्बिनेशन से. नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टरीज, आर्टरीज की आप यहाँ पे सबसे पहले वॉल देखो. आर्टरीज की वॉल इज थिकर एज कंपेयर टू द वेन. पहला डिफरेंस तो ये हो गया which is thickness. thickness arteries की ज्यादा है और veins की कम है. Next point, let's talk about their lumen. lumen होता है ऐसा स्पेस जिसमें से एक्चुअल ब्लड फ्लो करेगा. तो क्योंकि आर्टरीज की थिकनेस ज्यादा है, उसका ल्यूमेन कम होगा, और वेन्स का जो ल्यूमेन है वो ज्यादा होगा. नेक्स्ट आप भी सी कि यहाँ पे आर्टरी वेन्स के अंदर कुछ वॉल्स प्रेजेंट है जो कि आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं है. तो वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते. These are the main differences which we can
Visualize from this diagram. This is the table of difference जिसमें different parameters mentioned है arteries और veins के differentiation के लिए. अब हम आर्टरीज और वेन्स को इस बेसिस पर डिवाइड नहीं करते कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं. हम उसको डिफाइन करते हैं इस बेसिस पर कि वो ब्लड वेसल, अगर कोई ब्लड वेसल है जो कि हार्ट से दूर लेकर जा रही है ब्लड को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको हम आर्टरीज बोलते हैं. और ऐसी ब्लड वेसल जो पूरी बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेकर आ रही है उसको हम वेन्स बोलते हैं. So arteries are the blood vessels which take blood away from the heart or from heart to the body. And veins are the blood vessels which carry blood from the body towards the heart. This is the main point of definition which we use to define arteries and veins. Next है nature of blood. अब नेचर ऑफ ब्लड में आएगा कि आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, with an exception of pulmonary artery and pulmonary vein. Because generally arteries carry oxygenated blood, but pulmonary artery is the only exception which carries deoxygenated blood. On the other hand, veins generally carry deoxygenated blood with an exception of pulmonary vein which carries oxygenated blood. Next we have thickness of the wall. अब ये thickness of the wall वाला point हमने last slide में diagram में भी देखा कि arteries की जो walls हैं they are thick, they are elastic and they are muscular, whereas veins की जो walls हैं they are thin, they are inelastic and they are muscular. Obviously muscle से ही बने होते हैं. Talking about the lumen, ये भी हमने देखा था last slide में that lumen of arteries is narrow, whereas veins का lumen is wider. It's comparatively large. प्रेशर ऑफ द ब्लड, अब क्योंकि आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर इज लेस. वॉल्स की बात करें तो वॉल्स जो है आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं और वेन्स में प्रेजेंट होते हैं. अब इसका पर्पस क्या है, क्यों वॉल्स प्रेजेंट है? वॉल्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं किसी भी ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए और ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर हमको ब्लड को फ्लो करवाना है, यूनी डायरेक्शनल मोशन चाहिए ब्लड का, तो उसके लिए वो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. अब वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर है इट इज कंपैरेटिवली लोअर, तो क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है वेन्स में तो वहां पर बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा है, इसलिए सिर्फ वेन्स में ही वॉल्स प्रेजेंट होंगे. ऑन द अदर हैंड अगर हम आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज में तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली पहले से ही हाई है तो वो एकदम से ब्लड फ्लो पीछे नहीं होगा. यही चीज मेंशन है, सिंस ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर देयर इज लेस चांसेस ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड. लास्टली आर्टरीज और वेन्स की पोजीशन हमारी बॉडी में कहाँ होती है? वेन्स जो हमारी है दैट इज सुपरफिशियल, वो सरफेस के पास प्रेजेंट होती है. जितना भी हम ऐसे देख के बोलते हैं ना हमें ग्रीनिश और पर्पल कलर की चीजें दिखती है, ब्लड वेसल्स दिखते हैं, दे आर नॉट, हम जैसे नॉर्मली बोल देते हैं कि नस दिख रही है. नस नहीं होता, नस इज आर नर्व्स विच इज रिलेटेड टू आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आर नर्वस सिस्टम. वेन्स हमें दिखती हैं जिसको हम बोलते हैं अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जितनी भी हमको ऐसे ग्रीन और पर्पल कलर की लाइंस दिखती है अपनी बॉडी पर या फिर अपने हैंड्स और लेग्स पर, they are the veins and not arteries. arteries भी हमारी बॉडी में बहुत अंदर डीपली सीटेड होती है, हम हमको ऐसे ऊपर सुपरफिशियली नहीं नजर आएंगी, but on the other hand we can superficially see the veins in our body. So this was it for today's video. I hope you have understood this topic very clearly. This was very important. In fact, this table of difference between arteries and veins is very important. So kindly go through this table once again. If you have not understood any topic or any point from this video, kindly replay the video. And if you still have any doubts, you can either comment in the comment box below or you can email me on the email ID given on the bottom left hand side of the screen. Thank you so much for watching. Keep learning.